गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि वी आर रनिंग सीबीएसई कोचिंग क्लासेस। बेटा आज जो है इंग्लिश में स्टैंडर्ड 8 सीबीएसई में इंग्लिश में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इमोशनल चैप्टर है, बहुत ही भावुक चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है वेयर लव इज गॉड इज, रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में वेयर लव इज गॉड इज, इस लेसन में ये बताया गया है कि भगवान कहाँ पे है। वेयर इज गॉड, title itself explains, title itself gives idea that God is where, God is available, not a specific place। कोई एक जगह पे भगवान जो है पर्टिकुलर प्लेस पे ही अवेलेबल है ऐसा नहीं है, बट द गॉड इज अवेलेबल वेयर लव इज देयर, वेयर सेरेनिटी इज देयर, where purity is there, जहाँ पे दिल में अच्छाई है, प्यार है, पवित्रता है, वहाँ पे गॉड अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँ बेटा, घर में ही अपने गॉड है माँ। दैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द गॉड, full of love, full of taking care of the children, with pious motive, no intention to get something in return. So first God is, who is there? That is the mother, we can say, God. तो उनको कभी भी भूलना नहीं है। ओके, चलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेसन की बात करें, उसमें मेन कैरेक्टर्स कौन है? Which are the main characters of the English chapter 1, where love is God is। तो मेन कैरेक्टर्स की बेटा बात करें तो पहले है मार्टिन एवडिक्टे। शॉर्ट में हम उसको मार्टिन बोलेंगे माय डियर वन। मार्टिन कौन था? Who was the Martin? Martin was a cobbler by profession। जिस तरह से बेटा each and everyone is doing his own profession, pursuing his own profession, just like some are teachers, some are engineers, some are cloth merchants, but he is cobbler. Cobbler means, you understood, no? God who repairs the shoes, sandals, we can say slippers, chappals, etc. So Martin was very poor person. He was cobbler by profession. He was living in a, we can say, that is in a tiny room in a basement. We'll discuss it afterwards. First, the characters, main character is Martin. Now, second character is preacher. Who is the preacher? Now, preacher is a person who gave the message. Preacher is the person who gave the religious message. Preacher is the person who tell to people, give the message of the God, that how to live a life, believe in God. That is called a preacher. Next character is Stepanich. He is an older soldier, an old soldier is there, we can say. So he is an old soldier, एक बूढ़ा जिसको बोल सकते हैं सोल्जर है। दैट इज द थर्ड कैरेक्टर। नेक्स्ट कैरेक्टर इज अ वुमेन। वुमेन वाज वेरी पुअर एंड ही वाज कैरिंग अ बेबी इन हर आर्म्स। यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक, द वेरी फर्स्ट लेसन इज देयर। यू कैन scroll and you will find the picture of a woman carrying a baby in her arms. Then better comes an apple woman. Here is an
Apple woman also mentioned in the lesson. She is selling the apple, she is carrying the basket on her head and selling in the, we can say, streets. But there is one culture that when an old woman is there, just like age of our grandmother, we call as a granny. So next character we can say that is the granny. She is an apple woman. And last we can say the character is a boy. Now I will talk all the characters in detail one by one and we will discuss the story also. Now I will revise quickly the main character: Martin, teacher, Stepanich, and woman, an apple woman, and a boy. Now let us better discuss each and every character in detail. First we'll go for the Martin. As I said, who is the Martin? Martin is a cobbler by profession. He is mending, he is repairing the shoes. Very poor person, but believing in God. क्या होता है बेटा? What happens? He was living in a tiny room in basement. Basement we can say in cellar. That is the one floor down to the ground floor. Where generally we are going for the party. So he has a small room. Tiny means we can say here बेटा, tiny का मतलब जो है हम ऐसा बोल सकते हैं एक small room में है, basement में रहता था. And the room had only one window. The room he was living, it had only one window. एक ही विंडो थी उस रूम में. He could see feet of the passers-by. He was doing his repairing work of shoes and looking from the window. And if he peep out, मतलब वो जब झांकता था, when he was seeing out of the window, but at that time he could see only the feet. पूरा नहीं देख रहा था कि who was passing by. He could not see. He could only see the feet. इतना ही available था सीन उसके पास. Martin had lost all. अब देखिए भगवान की यहाँ पे जो है माया जिसको बोलते हैं, भगवान की इच्छा जिसको बोलते हैं, we can say, sorry for the disturbance. Okay, sorry for the disturbance. We resume again. जैसा कि बेटा आप जानते हैं, ना तो अपने पास कॉम्प्लिकेटेड स्टूडियो है, बड़े बड़े कैमराज हैं. We are only one thing with us, that is the honesty and the hard work and teaching method, and you know that. चलो हम resume करते हैं बेटा. That he had lost all, मतलब उसके सारे हम बोल सकते हैं बच्चे. Lost मतलब वो चल बसे हैं, they are not in this world. ऐसा भी बोल सकते हैं वो मर गए हैं, died. अब नेचुरली ये आदमी किसके लिए बेटा काम करता है? फॉर whom a person works. Person works for his family, person works for his wife and the children. अब देखो वही नहीं बचे तो कितना आदमी जो है डिस्पेयर हो जाएगा, मतलब होपलेस बन जाएगा. देखिए डिस्पेयर का मतलब है होपलेस बन जाएगा, कितना दुखी हो जाएगा. His wife died. He was left with 3 years old son. देखिए सबसे बड़ी करुणा की कंडीशन आ रही है. मैं डियर वंस को ध्यान से समझिएगा. उसकी वाइफ जिसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं, जिंदगी बोलते हैं, जो हमको दुख सुख में साथ देती है, हर पल हमारे साथ रहती है. अगर किसी जेंट्स की वो वाइफ अगर चली जाए और पीछे छोड़ के जाए सिर्फ 3 साल का बच्चा, तो बेटा सोचो कि हाउ द जेंट्स, हाउ दैट मेल पेरेंट्स, वो कैसे उसको बेटा, कैसे उसको जो है वो ग्रो करेगा, कैसे उसको पालेगा, हाउ ही विल नर्चर हिम. 3 साल का छोटा बेबी छोड़ के, दैट इज शी डाइड. नाउ माय डियर वंस,
अब उससे भी और ही करुणा की बात आती है, दुख की बात आती है। तो when a boy that is became young but fell and died, अब वो छोटा बच्चा जैसे तैसे करके मार्टिन ने उसको बेटा बड़ा किया, मार्टिन ने उसको बड़ा किया। व्हाट हैपेंड कि जैसे वो यंग हुआ, he could reach to the age of to help his father, ऐसे वर्ड्स लिखे हुए टेक्स्ट बुक में। जब वो अपने पापा को हेल्प करने की एज में पहुंचा, मतलब यंग हो गया, मतलब बिल्कुल स्ट्रांग यंग, वो भी बेचारा बीमार पड़ गया और वो भी एक वीक के बाद डाइट मर जाता है, गुजर जाता है। अब उस कंडीशन में मार्टिन वॉन्डर्ड व्हाट ही वुड डू। मार्टिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था बेटा कि वो करेगा क्या। एक तो वो पहले से गरीब है, उसके सारे जो है बच्चे जो है वो डाइड है, उसकी वाइफ भी डाइड हो जाती है। लेकिन जब एक छोटा सा बच्चा 3 साल का बच्चा बचता है, वो अगर बड़ा होता है और वो भी यंग बच्चा, कितनी कितनी दुख की बात है बेटा जब पेरेंट्स के सामने कोई यंग बच्चा, उसका खुद का बच्चा यंग होकर जब डाइड होता है, तो वो दुख सिर्फ पेरेंट्स ही समझ सकते हैं बेटा, और कोई नहीं समझ सकता। और मार्टिन बेचारा वंडर्ड में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया, दुखी हो गया कि अभी मैं करूँगा क्या, व्हाट आई विल डू। वो ओल्ड होने लगा धीरे धीरे, नियरर टू द गॉड, ही ड्रॉ नियरर टू द गॉड। वो चाहता था कि मैं भगवान के और करीब जाऊं। उस टाइम पे वन डे अ प्रीचर विजिटेड हिम, एक दिन एक प्रीचर उसकी मुलाकात लेता है, उससे मिलता है। अब वो उसको क्या समझाता है, उससे पहले मार्टिन उसको बोलता है, कंप्लेन करना शुरू करता है। वो नेचुरल था बेटा कि मार्टिन कंप्लेन करे। मार्टिन वाज कंप्लेनिंग, मार्टिन टोल्ड हिम, ऑल आई आस्क ऑफ God is that I may soon pass away peacefully। याद रखिए, इतना दुखी था बेटा। He was telling to the preacher, he was telling to the, we can say in simple language, to the saint, he was telling to the religious messenger कि बस मैं भगवान से भी एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द खुशी से पीसफुली पास अवे हो जाऊँ, मतलब इस दुनिया को छोड़ दूँ, मतलब मैं मर जाऊँ। So this is the, we can say, first paragraph that I tried to explain the story where Love is God is, written by Leo Tolstoy. We will continue this chapter and its explanation बहुत अच्छी तरह से, हिंदी and English, that we call English. You will continue to see this lecture। आगे वाले लेक्चर में मैं आपको स्टोरी जो है और बताऊंगा, that will complete the story। थैंक यू। सबसे अच्छी बात कि आप लोगों का रिस्पॉन्स, आप लोगों का जो विश्वास है वही मेरी रियल स्ट्रेंथ है। बहुत सारे लाइक, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं। हम स्कूल शुरू होगा उससे पहले ही हमने सीबीएसई में मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर शुरू कर दिया है। दिस इज़ योर बेटा, आप लोगों का जो है एक विश्वास है जिसकी वजह से मैं ये कुछ कर पा रहा हूँ। सो थैंक यू वंस अगेन। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। हैव अ गुड डे।